Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start the next video in the series of 360 division series, in which we are going to cover the subjects such as history, polity, science, economy, environment, geography, and all of the static GK and GS portion. So let us start with the today's class. If you haven't watched the previous videos, you can go to the playlist section of the channel and you can find the video by the name of 360 division series, or the link to the playlist will be available in the description of this video also. So start करते हैं हमारी इस आज की क्लास को. द वे वुड बी कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड देन यू कैन attempt the question, and then you can obviously listen to the explanation in which I am going to explain you the static points. So let us start the video. Now the first question is, which one of the following is a permeable rock that allows water to pass through it? Now this question is based on which of the following is a permeable rock. Now, but to know this question, we need to know about which of the rocks are permeable and which are non-permeable. I hope you have attempted this question. So talking about the permeable rocks, now these are the rocks that allows water to pass through it. ये ऐसी rocks होती हैं that allows water to pass through it. Now some of the examples of the permeable rocks are sandstone, chalk and limestone. Now if we see the options here, limestone यहाँ पे हमें मिल रहा है एक option में, so the correct answer would be limestone. But on the other hand, if I talk about the non-permeable, so as the name suggests, these rocks के बीच में से the water does not flow, so these are the non-permeable rocks. Some of the examples are granite, shale, marble and slate. These are the examples of non-permeable rocks. Now let us know let us know about the types of the rock. Now this is a very important portion. यहाँ से questions हमेशा exams में पूछे जाते हैं. Now talking about these rocks, there are three types of rock mainly. The one is igneous rock, the other one is sedimentary, and the third one is metamorphic rock. Talking about the igneous rocks, these are formed by the cooling and solidification of magma deep inside the earth. Okay, now igneous rock में भी there are two types of rocks. One is the intrusive rock. Now this intrusive rock is also known as plutonic rock. This is also known as plutonic rock. Now these are the types of rock that cools beneath the surface and these form the large crystals. ठीक है, जो large crystal form करती है that is the plutonic rock or the intrusive rock. So granite and gabbro जो mention किया है मैंने यहाँ पे, these are the examples of the plutonic rock. Now एक तो हो गया हमारा intrusive और the plutonic rocks. Second one is the extrusive or the volcanic rocks. Now ये जो rocks हैं, these cools down at the surface only. Now some of the example is basalt and pumice. These are the examples of the extrusive or volcanic rock. ठीक है, so these are some of the examples of igneous rock. Talking about the basalt, the peninsular plateau का जो region है, the region of the peninsular plateau, ये हमारा it is made up of basalt only. Okay, now you have to tell me इंडिया में कौन कौन से states are the part of the peninsular plateau. This will tell me in the comment section. Now secondary talking about is the sedimentary rocks. Now which are the sedimentary rocks? Now these are the types of rocks that are formed by the accumulation and compression of the sediments. Okay, now कौन कौन से sediments? Just like sand, silt, organic matter, इनका जब compression होता है and it goes through the process of accumulation and compression, these sedimentary rocks are formed. Some of the examples are gypsum, sandstone and shale. Next is the metamorphic rocks. Now these are the existing rock. When the existing rocks are transformed by the pressure, temperature and the chemical process. सारे chemical processes, pressure and temperature जो fact यहाँ पे act करते हैं, but not melting. If they melt and then they cool, they are known as igneous rock, as I have told you. Excluding melting, जितने भी chemical processes होते हैं, and the rocks that are formed by this is metamorphic rock. ठीक है, now these rocks are mainly formed by the process of foliation.
फोलिएशन में क्या होता है, लेयर्स बनती हैं इन द स्पेसिफिक रॉक। किसी मिनरल में लेयर बाई लेयर वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल स्लेट में होता है, शिस्ट है उसमें होता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोलिएशन। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक एंड सम ऑफ द एग्जांपल आर शिस्ट, सेल एंड मार्बल। सो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लाइमस्टोन। इन एडिशन टू दैट आई हैव टोल्ड यू द एग्जांपल्स ऑफ दिस इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये आपको पता हो गए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली सॉल्व किया होगा। सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर that is uniform. On the other hand, the particles of the solution are very much small and they are very too small to be filtered. मतलब filtration करना is very very difficult in this solution. Okay, also solution does not scatter light. Scattering of light नहीं होता है solution में. Okay, and separation is not possible. अब let us see the ऑप्शंस है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलॉय। नो मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में सारा कुछ बताया था। सो वी नो दैट एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ एज वी नो दैट एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, तो वो एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, एब्सोल्युटली है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन में क्या होता है, इन अ लिक्विड इफ यू टॉक अबाउट देयर इज़ अ सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में। सो सॉल्यूट क्या होता है, एनीथिंग दैट इज मिक्सड इन लेसर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट, एंड जिस भी मेन कंपोनेंट की क्वांटिटी लार्जर अमाउंट में होती है दैट इज द सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मिल्क, मिल्क इज ऑल्सो समवॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, टिंडल इफेक्ट की मैं बात करूं विच इज़ रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस टिंडल इफेक्ट can be demonstrated in milk only. Talking about the air, air is obviously a mixture of gases. Air हमारा क्या है, mixture of gases है, so obviously this is also a solution. Now next जो हमारा point है वो है sugar. Now अगर मैं sugar की बात करूँ to be specific, so sugar हमारा it is not a solution. Why it is not a solution? Because it is a pure substance. Sugar एक pure substance है which is a suspension and not a solution. So correct answer हमारा हो जाएगा इस question का sugar. Sugar is not a solution. Okay, let's now move to the next question. Now this question is of economy. क्वेश्चन है हमारा, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड द टोटल एसेट. व्हाट इज दिस रेशियो नोन एज? नाउ सी, जनरली इफ यू टॉक अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो मेनली वहाँ पे दो टाइप से चीज़ें ऑपरेट होती हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट RBI, नाउ टॉकिंग अबाउट RBI, इसमें दो टाइप से द RBI मैनेजेस टू टेक कंट्रोल एंड इट मैनेजेस द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. सबसे पहला तो है हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स. नाउ दिस क्वांटिटेटिव मेजर्स में देयर आर वेरियस रेशियोज दैट आर यूज. द अदर वन इज क्वालिटेटिव मेजर. नाउ क्वांटिटेटिव मेजर में क्या आता है, क्वांटिटेटिव मेजर में हमारा बैंक रेट आता है. Now bank rate is most often is used for the cases of penalty. Then आता है हमारा repo rate. Now repo rate is a standard tool which is used by the Reserve Bank of India to manage the inflation in the country. Now repo rate के बाद there is the cash reserve ratio जो अभी ऑप्शन में हमारे दिया है, and the next is there is statutory liquidity ratio. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, डेट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी डेट इज़ नोन एज SDF, SM, MSF. दीज आर दी सम ऑफ द क्वांटिटेटिव मेजर दैट इज़ टेकन बाय RBI. क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्रेडिट रैशनिंग होता है, मतलब कि द RBI डिसाइड्स कि कितना क्रेडिट हमें एलोकेट करना है,
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के क्या रूल्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द आरबीआई। इन एडिशन टू दैट मोरल सुएशन इज़ अ टूल। तो अगर आपको ये इकोनॉमी के बारे में किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इफ़ आप लोग बोलोगे तो आई विल मेक अ सीरीज ऑन इकोनॉमी एज वेल, इन विच I'll deal in detail with the various dimensions of economy. Now इस क्वेश्चन में मेनली दो ऑप्शंस हैं हमारे, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ दिस कैश रिजर्व रेशियो इज मेंशन्ड इन द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ऑन दी अदर हैंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी मेंशन्ड है, बट आरबीआई एक्ट में इसका कोई मेंशन नहीं है। तो ये कौन से एक्ट में मेंशन्ड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक है। नाउ कैश रिजर्व रेशियो क्या है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज केप्ट विथ आरबीआई इन कैश। क्वेश्चन हमारा क्या था, कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट का वो रेशियो जो बैंक हैज़ टू मेंटेन, दैट इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। नाउ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, नाउ इट इज़ द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक दैट इज केप्ड इन लिक्विड एसेट। अब ये लिक्विड एसेट का क्या मतलब है, लिक्विड एसेट में सिर्फ कैश नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड एसेट कंस्टिट्यूट्स ऑफ कैश प्लस गोल्ड प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लस ट्रेजरी बिल्स, दैट इज द टी बिल्स विच इज़ अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंपोनेंट। तो लिक्विड एसेट जो है दैट इज डेल्ट बाय द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑल्सो स्टैट्यूटरी करंट CRR, इफ़ आई टॉक अबाउट द CRR पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करता है बैंक, बट NDTL में बैंक अर्न सम सर्टेन इंटरेस्ट। कैश रिजर्व रेशियो हैज़ ऑलवेज टू बी मेंटेन्ड बाय द आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के पास ये पैसा रखना पड़ता है आउट ऑफ द कैश। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक कैन कीप इट विथ इटसेल्फ, बैंक अपने पास ही ये रिजर्व्स को रखता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। आई होप कि आपको ये प्रोविज़न समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ एक और बात अगर मैं बात बताऊं आपको, तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, इफ़ द इकोनॉमी इज़ एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज़ करेगा। अब CRR के इंक्रीज़ होने पे क्या होगा, इट मीन्स मान लो 100 रुपीज़ में पहले बैंक 20 रुपीज़ एज अ CRR मेंटेन करता था आरबीआई के साथ। नाउ आई टेल यू दैट द CRR इज इंक्रीज्ड बाई 10%। नाउ जो पहले ये 20 रुपीज़ द बैंक यूज टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक, अब उसको 22 रुपीज़ आरबीआई के पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या, पहले बैंक के पास 80 रुपीज़ बचते थे जो वो फर्दर लेंड कर सकता था, अब बैंक के पास में 78 रुपीज़ बचेंगे टू लेंड इन फ्यूचर। ना पैसे तो अब कम हैं लेंडिंग के लिए, तो इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये है कि लोन्स जो है बैंक ज़्यादा नहीं दे पाएगा। जब बैंक लोन ज़्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक के पास अमाउंट कम हो गया है, क्योंकि मोर ऑफ द अमाउंट इज़ बीइंग हेल्ड विद द आरबीआई, बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा अमाउंट जमा करना पड़ रहा है, फॉर दैट रीज़न लोन्स कम दे पाएंगे बैंक, एंड जब लोन कम दे पाएंगे बैंक तो डिस्पोजेबल इनकम, लोग कम लोन लेंगे, लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो वो स्पेंड कम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हाथ में तो पैसा है नहीं। तो जैसे ही वो कम स्पेंड करेंगे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। सो दिस इज़ अ वेरी विशियस टाइप ऑफ साइकिल दैट गो ऑन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप रिजर्व रेशियो, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा कुछ आप ऐसे ही असरटेन कर सकते हो कि इसका इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन है एंड ये चीज़ें किस हिसाब से काम करती हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा CRR है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, consider the following statement about the laterite soil found in India. Now laterite soil is found in the high altitude of Himalayas. अब जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट दिखे आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट कर देना। क्यों, क्योंकि लेटराइट सॉइल के बारे में हम देख लेते हैं। अब लेटराइट सॉइल इज रेडिश इन कलर एंड रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इन सॉइल, ठीक है, इट इज़ एन आयरन एंड एल्यूमिनियम रिच सॉइल।
Why is the red color of the laterite soil? Because it is rich in the iron oxides. Iron oxides की वजह से red color होता है of the laterite soil. Next is it is low in nitrogen and it is low in the phosphorus. Next is कहाँ पे ये soil मिलती है? So these soils are found in the area having high rainfall and areas with the dry and wet season. It means what? क्या हाई रेनफॉल का एरिया है हमारे हिमालय का एरिया? हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ हिमालय में क्या रेनफॉल होती है? नहीं होती है ना. सो वन तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, तो डी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता. नाउ क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट इन द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, so will this soil be very fertile? No, it will not be. The laterite soil is not very much rich in fertility. So हमारा सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया. So या तो आंसर हमारा 3 होगा या तो हमारा आंसर 3 एंड 4 होगा. नेक्स्ट इज इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो हमने अभी देखा कि 4 हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो आंसर हमारा क्या यहाँ से आ गया? आंसर हमारा आ गया 3 एंड 4, दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं. Now soil is red in color due to the presence of iron oxide. This I have also dealt with and मैंने यहाँ पे 4th पॉइंट भी डील किया. सो करेक्ट आंसर हमारा 3 एंड 4 हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अबंडेंट सॉइल, मोस्ट अबंडेंट सॉइल कौन सी है? तो दैट इज़ द एलुवियल सॉइल. ओके, नाउ एलुवियल सॉइल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल. एक तो है खादर, एक तो है बांगर. नाउ इनमें से विच ऑफ द सॉइल इज न्यू एंड विच ऑफ द सॉइल इज ओल्ड, दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन. नाउ एक बार में देख लेते हैं विच ऑफ द डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द वायरस एंड बैक्टीरिया. वहीं से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एंड ये सारे डिसीजेज आप याद रखना. नाउ मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, रेबीज एंड पोलियो, these all diseases are caused by the virus. Now हेपेटाइटिस में भी देर आर हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन से हेपेटाइटिस डिजीज़ के लिए वैक्सीन इज़ नॉट देयर. ठीक है, दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज, द डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो टीबी, टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, टिटनस एंड मेनिंजाइटिस, दीज आर सम ऑफ द डिजीजेज दैट आर caused by the virus, so caused by the bacteria. Let us see the options जो हमारे पास यहाँ पे हैं. एड्स हमें पता है this is caused by the virus and it is to be specific caused by a retrovirus. AIDS is caused by a retrovirus. Now next अगर मैं बात करूँ डेंगू फीवर, सो डेंगू अभी हमने देखा. डेंगू फीवर is caused by a virus that is transmitted by the Aedes aegypti mosquito. Aedes aegypti mosquito. COVID-19 is a virus, तो पता ही होगा आपको. टॉकिंग अबाउट द टाइफाइड, टाइफाइड अभी हमने देखा, दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन. सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज yes, that is related to the greatest diversity of animal and plant species is found in which forest. Now you can just pause this question, pause this video and try this question on your own. Now let me tell you. हाँ, एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बोल रहा था, मेरे दिमाग में अभी आया, रिसेंटली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. जॉर्डन रिसेंटली हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इरेडिकेट, ठीक है, इरेडिकेट लेप्रोसी कम्प्लीटली. ठीक है, जॉर्डन हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री. ये पॉइंट ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज इज फाउंड इन. अभी वेयर आर दिस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी वहाँ पे ही होगी ना जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे. एंड फॉरेस्ट ज़्यादा कहाँ पे होंगे? जहाँ पे रेनफॉल होगी. रेनफॉल कहाँ पे होती है? इक्वेटर के एरिया में होती है.
तो अगर मैं यहाँ पे आपसे मैंने इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, तो यू वुड गेट टू नो दैट डेजर्ट एंड सवाना तो हो नहीं सकता। डेजर्ट में तो प्लांट्स होते ही नहीं हैं, फॉरेस्ट तो बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पे अबंडेंस कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। सवानाज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये भी नहीं हो सकता। आर्कटिक एंड अल्पाइन सिस्टम, दीज आर एसोसिएटेड विद द कोल्ड वेदर कंडीशंस। फ्लोरा तो बहुत कम होता है। एंड इफ़ आई ऑल्सो टॉक अबाउट फौना, तो पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स एट्सेट्रा ही होते हैं, ठीक है। एंड एक्सट्रीम अल्पाइन की मैं आर्कटिक की मैं उसकी बात करूँ तो मॉसेस एंड फर्न्स आर देयर इन दी हाई एल्टीट्यूड रीजन। तो ये बी एंड सी ऑप्शन में तो बिल्कुल ही प्लांट एंड एनिमल की डाइवर्सिटी नहीं हो सकती है। दिस इज़ वेरी मच लॉजिकल। कन्फ्यूजन अगर आपका टेम्परेट फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट में है, सो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। Let's now move to the question. Now talking about this, if I talk about the temperate forest, these are the areas between the tropical and the polar region. Okay, these areas have moderate temperature with warm summer and cold winter. अब moderate temperature होता है इन areas का। Now अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, कॉनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। सो वेरी बहुत ज़्यादा टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, एंड इसका नाम भी पता होगा, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में बोलते हैं। डाउन्स आर द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। प्रेरीज की मैं बात करूं तो ये नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। स्टेपीज की मैं बात करूं तो दीज आर द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। आपको मुझे बताना है पुस्ताज, ये कहाँ के टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। एंड सम ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर ऑल्सो देयर। अभी ट्रॉपिकल मॉइस्ट के बारे में बात करते हैं। नाउ दिस, अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट की, सो दीज आर द फॉरेस्ट जो कि आर देयर इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल। अभी मैंने बताया जैसे ही किसी एरिया में हाई रेनफॉल होगी, ऑब्वियसली डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल होगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ना ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है, एंड दीज लाइज बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मॉइस्ट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एवरग्रीन होता तो आपने स्ट्रेट अवे आंसर मार्क कर देना था, ठीक है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज बाई। सो दिस इज अ प्रेटी फैक्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सो इफ़ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सो आर्नोल्ड टर्नबी is the correct answer. He is the one who was first to use the industrial revolution. Now industrial revolution, let us link this topic with the history part, history of India part. Now the industrial revolution led to the rise in the manufacturing industries, and manufacturing industry जैसे establish हुई in the regions of United Kingdom, तो मैनचेस्टर गुड्स का नाम आपने सुना होगा। These are the मैनचेस्टर गुड्स। अब ये एक ऐसे गुड्स थे that were ready-made and these were imposed on the Indian markets. ओके, जैसे ही ये रेडीमेड गुड्स थे जिनको टैरिफ्स का प्रोटेक्शन भी मिलता था, तो ये इंडिया की आम पॉपुलेशन, द मिडिल क्लास पॉपुलेशन को ये अपील करने लगे, एंड दे वेयर चीपर। सो डिमांड फॉर दिस मैनचेस्टर गुड्स राइज्ड, and the normal handicraft industry and normal goods of the country faced a severe jolt. ये हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट वेयर लार्जली इन यूज्ड इन द रीजन्स ऑफ यूरोप एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड इन पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स इम्पोज होते थे, ठीक है। सो इस वजह से भी इनका जो है वो डिक्लाइन हुआ। Now the rise of industrial revolution is linked with the deindustrialization in India, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि there was the rise of industrial revolution and there was deindustrialization in India, and deindustrialization का मतलब वो हुआ जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। Now
ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे इंडिया के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के. ही रोट अ बुक द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये बुक किसने लिखी थी. हु रोट दिस बुक. टू ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड विद दिस बुक. सो ये किसने लिखी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. Now next is the term ecosystem. It was first propounded by Arthur Tansley. Cell was first propounded by Robert Hooke. Nucleus of a cell was propounded by Robert Brown and neutron was propounded by James Chadwick. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. करेक्ट आंसर इज आर्नल्ड टोयनबी. नेक्स्ट देखते हैं. Next is about, this question is also dealing with the geographical aspect. Now, denudation, weathering, mass wasting, erosion and transportation are the indicators of which of the following process. Now, talking about the denudation. Now, denudation is a long-term process. It includes weathering, erosion, mass wasting and transportation. अब weathering क्या होता है? Weathering is necessarily the breakdown of rocks. ठीक है, एंड ये ब्रेकडाउन कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल. दिस इज वेदरिंग. इरोजन क्या होता है? नाउ इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द वेदर्ड मटेरियल. जैसे ये वेदरिंग के बाद में जो वेदर्ड मटेरियल है इसका ट्रांसपोर्ट एंड इसका रिमूवल बाय द एजेंट सच एज विंड, वाटर एट्सेट्रा. दिस इज इरोजन. मास वेस्टिंग क्या हो गया? नाउ आपने ऐसे माउंटेन में देखा होगा देयर इज़ अ डाउन स्लोप. तो जब ये डाउन स्लोप होता है तो रॉक्स एंड सॉइल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लैंडस्लाइड्स होती हैं. दैट इज़ नोन एज द मास वेस्टिंग. ठीक है. एजेंट्स कौन कौन से होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन? सो दीज एजेंट्स आर वाटर. वाटर से तो होता ही है, विंड से होता है, देन विंड के बाद आइस है, देन है ग्रेविटी. दीज आर ऑल द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द एंडोजेनिक प्रोसेस. अब एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है? इस क्वेश्चन का तो आंसर पर्टिकुलरली आपको पता चल गया होगा. दीज ऑल आर रिलेटेड टू द डेन्यूडेशन. डायस्ट्रोफिज्म, एंडोजेनिक प्रोसेस एंड माउंटेन बिल्डिंग, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको बार बार ये कंसेप्ट को रिवाइज ना करना पड़े. Talking about the endogenic processes, these are the internal geological forces that are driven by heat, pressure, gravitational forces, etc. Some of the agents of endogenic process is volcanism. Volcanism मतलब क्या? When the magma moves to the surface of the earth, this is volcanism. What is diastrophism? Diastrophism is the deformation of earth crust. जो अर्थ की क्रस्ट है उसका डिफॉर्मेशन होता है एंड इस डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? फोल्ड क्रिएट होते हैं, फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं. एंड ये फोल्डिंग की वजह से ही है कि द फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म. अब फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? फोल्ड माउंटेन्स हमारा एल्प्स माउंटेन्स इन यूरोप, देन देयर इज हिमालयाज ऑब्वियसली. एंड द लार्जेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? एंडीज माउंटेन्स हैं. कहाँ पे? तो साउथ अमेरिका में. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है. सो ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं. आपको मुझे बताना है सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स. ठीक है. सो दिस इज रिलेटेड टू डायस्ट्रोफिज्म which is deformation of earth crust. Then is epirogenic movement. This is related to the upliftment or subsidence of the large crystal block. अब इन epirogenic movement से क्या होता है? The plateaus are formed. Plateaus and the basins are formed. And mountain building force को क्या बोलते हैं? Orogenic forces बोलते हैं इनको. Orogenic is related to mountain building and epirogenic is related to the formation of the plateaus and all. So I hope कि आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया होगा. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डेन्यूडेशन है एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दी अदर फैक्टर्स दैट आर वर्किंग हियर. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्प्रिंग टाइड. अब व्हेन इज द स्प्रिंग टाइड फॉर्म?
Spring tide is formed when the earth, sun and moon are aligned in a straight line. There is earth, there is moon and there is sun. ठीक है, अर्थ सन मून एक लाइन में अलाइंड होता है. तो जब ऐसा होता है देन देयर इज हायर हाई टाइड्स. हाई टाइड्स जो हैं दैट इज हायर एंड लो टाइड्स आर लोअर. हाई टाइड इज हायर एंड लो टाइड इज लोअर देन द एवरेज लो हाइट. ठीक है. इसके अलावा देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नीप टाइड्स. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज़ अ नीप टाइड. नेसेसरली क्या होता है, 90 डिग्री का जब एंगल फॉर्म होता है देन देयर इज नीप टाइड. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि द हाई टाइड इज़ हायर देन द एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज़ एवरेज देन द लो टाइड. ठीक है. स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड यहाँ से आपको रिवाइज कर लेना है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो विद दिस वी आर डन विद द टूडेज लेक्चर. डू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट करके आप बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको. टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.